Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about transport of substance in plant and animal. जो ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स में किस प्रोसेस से होता है, किस तरह होता है. In this chapter you will learn about introduction, composition of blood, how do plants transfer water and minerals. तो प्लांट्स है वो अपनी ग्रोथ के लिए जो मिनरल्स और वाटर है वो किस तरह से आगे सप्लाई करते हैं. फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम out for the water also plays their picture in the space provided. This is activity do it yourself. Introduction. In the previous chapter we learned about respiration in living organisms. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन किस तरह से होता है. There are other body process that are equally important. उसी तरह से जो दूसरे सिस्टम है वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. Take a look at picture given below. An organ inside the body beats up real fast while running. Can you identify the organ in the next picture? Upper pooping. Name the body process involved in this activity. यहाँ बॉय क्या कर रहा है, भाग रहा है, तो कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है. यहाँ जो है वो बर्ड पूप कर रही है, तो कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है. The air taken in while breathing needs reach every look and corner on our body. This is where circulation comes in and our heart play a very important role in it. Plants and other organisms have their own way of transport substance. सबका अपना अपना एक अलग तरीका है अपने बॉडी के ट्रांसपोर्ट के लिए. ठीक है, सबके बॉडी सिस्टम जो है वो एक ही तरह से वर्क नहीं करते, सबके ऑर्गन्स एक ही तरह से नहीं करते, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग करते हैं. अगर वो हेल्दी पर्सन है तो उनके ऑर्गन ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, फिट है तो भी अच्छे से करेंगे. अगर थोड़े से अनफिट हैं, अनहेल्दी हैं, तो बॉडी ऑर्गन जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे. हाउ डू प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स. Plants need to carry water, minerals, food one part to another to perform various functions. At the moment of all these substances, plants have fully developed transport system. प्लांट्स के पास फुल्ली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है. इन्हें किसी की नीड की जरूरत नहीं है, अपना ही एक बहुत अच्छा सिस्टम है. दिस सिस्टम इज कॉल्ड vascular system. It is made up of long chain like tubes, vessels, which are of two types. जो मेन चीजें हैं ना प्लांट की वो है जाइलम और फ्लोएम, जो मिनरल्स और वाटर को सारे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में भेजने का काम करते हैं. देखिए, वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल. सॉइल से यानी मिट्टी से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया. द रूट्स ऑफ प्लांट हैव थिन thread like a growth called the root hair are in with thin film of water present between soil particles. अब जितनी भी जड़ें हैं वो क्या होंगी, हमारी मिट्टी में फैली हुई होंगी और मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी. सिर्फ वाटर ही नहीं, साथ में मिनरल्स भी. और देखिए ये ड्रॉपलेट्स क्या है, हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है और सारे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा रही हैं. Once the water molecules go inside the root hair and finally enters the conducting tubes of xylem present in root. Roots के अंदर xylem tubes present होती हैं जो क्या करती हैं, water absorbed in the root xylem thus processed onto xylem cells of the stem, finally into xylem cells of leaves. As a result, the water absorbed through roots reaches the leaves. फिर वो पानी जो है धीरे धीरे रूट से सारे वो इसके प्लांट्स के पार्ट या लीव्स में पहुंचा दिया जाता है. The upward movement of water containing dissolved minerals is called movement of sap. ठीक है, to demonstrate the phenomena of transpiration. Transpiration किस तरह से होता है. Take a and keep jar showing figure. एक प्लांट को लीजिए, उसको एक कांच के जार से The pot and soil would be covered with a polythene. या तो पॉलीथीन से कवर कीजिए या किसी हम कांच के बर्तन से भी कर सकते हैं. अगर पॉलीथीन से करेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि कांच में आप इजीली होल नहीं कर पाएंगे. So that no heat can escape water through the aerial parts of plant. Absorb the set of up 3 or 4 hours. What do you notice? अब आपने क्या किया, इस प्लांट को पॉलीथीन से कवर कर दिया
और यहाँ पे देखा आपने थोड़े टाइम बाद छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो जमा होने लग जाएंगी। ये क्या शो करती हैं? You will find moisture accumulating on the inner surface of the bell jar. It is because of air. The bell jar becomes saturated due to water vapor released by plant and gets condensed and deposit on the inner surface of jar. A bell jar without plant will not show loss of moisture. Under the same condition, what does this activity prove? What makes water rise in the xylem tube? अब जो वाटर है वो xylem ट्यूब में किस तरह पहुंचता है? प्रेशर कॉज्ड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किसी चीज को आप कहते हैं ना, वो देखिए जैसे समझ लीजिए ये एक वो है ट्यूब, स्ट्रो से अगर मैं यहाँ ऊपर से प्रेशर दूंगी ऐसे करके तो पानी को हम इजीली ऊपर खींच पाएंगे। वही काम जाइलम ट्यूब्स का होता है, रूट्स के जरिए मिट्टी से पानी को ऊपर की ओर खींचना या एब्सॉर्ब करना। ट्रांसपिरेशन पुल, खींचना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू एटमॉस्फेयर मोस्टली फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट थ्रू स्टोमेटा। अब थ्रो जो ये पानी है कहाँ जाता है? स्टोमेटा में। स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग फाउंड ऑन अंडरसाइड ऑफ लीव्स। पत्तियों के नीचे वाले हिस्से में टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोल सकते हैं। हम प्रीवियस चैप्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। Almost 90% of more water that plants take up in always lost through transpiration. अब प्लांट्स में वाटर का लॉस कैसे होता है? जब उन पे सनलाइट पड़ती है, ट्रांसपिरेशन होता है, तब उनका वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है। क्या ना, ज्यादा गर्मी पड़े या धूप पड़े तो चीजें सूखने लगती हैं, ऐसा ही द इवेपोरेशन, पानी जो है वो इवेपोरेट होने लगता है, भाप के फॉर्म में उड़ने लगता है। द इवेपोरेशन वाटर फ्रॉम द लीव्स जनरेट टू pull that sucks water right up to the tip even by the tall tree. Transportation of food. Plants make their food through a process called photosynthesis. सबको पता है जो प्लांट अपना खाना है वो फोटोसिंथेसिस, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। A plant has separate network of tiny tubes is called phloem to carry food. Xylem का काम था पानी को एब्जॉर्ब करना और phloem का काम क्या है? फूड को एब्जॉर्ब करना। The phloem transport food made of leaves to stem, branches, flower. अब ये सारे पार्ट में क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। कहाँ कहाँ पे? स्टेम में, ब्रांचेस में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स एंड रूट्स में। ये किसका काम है खाने का? फ्लोएम। अब देखिए जाइलम क्या है। इसका एक पार्ट हमने कट किया, ये सर्कुलर सा है। इसके अंदर ये जो क्रॉस का निशान बनाया ना, ट्यूब्स जो पानी को सक करने का काम करती हैं, वो हमारी जाइलम। ठीक है, फिर आइए ये फ्लावर टाइप जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा फ्लावर वाला, ये है हमारा फ्लोएम जिसका काम होता है प्रोवाइड कराना। इन प्लांट फूड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। जो मिनरल और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम है प्लांट में, वो किसका है? हमारा फ्लोएम और जाइलम का। To see phloem in transpiration, take a plant a thick stem, remove the phloem tissue, observe the stem after few days. अब आप क्या करेंगे? वो ले लेंगे, प्लांट की स्टेम ले लेंगे, उसकी भारी जो लेयर है उसको हटा देंगे। फिर आप देखेंगे some few days if you show swelling, अब आप उसको छोड़ देंगे, अगर पानी में छोड़ देंगे, अगर आप देखेंगे कि वो फूल रही है, आपकी जो स्टेम है उसने स्वेल होना या फूलना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब यह है कि वो पानी को एब्सॉर्ब कर रही है या पानी को खींच रही है। वाटर एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ लिविंग बॉडी। बिल्कुल जी, पानी हमारे लिए सबके लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना तो हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। Plants and animals contain a large amount of water. Animals drink water or obtain it from food they eat. Many animals live in desert, live on water present in their food. Your body to contain a large amount of water. Human brain 80% of water. Even your bones have nearly 25% of water. Blood contains 80-85%. These unable to blood remains. देखा जाए तो हर तरह से पानी बहुत ही जरूरी है। Water absorbed and given off heat with a small change in its temperature. This property of water makes it an ideal medium for controlling body temperature. Why do we have to drink water? हमें पानी पीने की जरूरत क्यों पड़ती है? पानी जरूरी है ये तो सबको पता है, लेकिन पानी जरूरी क्यों है?
आवर बॉडी लूज वाटर ऑल टाइम। आपने देखा होगा जो हमें स्वेटिंग होती है ना, हमें जब पसीना आता है, गर्मी लगती है, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी से जो हमारा वाटर है वो रिलीज हो रहा है, एक तरह से डिहाइड्रेट हो रही होती है हमारी बॉडी, पानी की कमी होना शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। आप देखिए स्वेट का मैंने आपको बताया, जैसे यूरिन, अब आप जो यूरिन पास कर रहे हैं वो भी तो आप वाटर को ही डिस्चार्ज कर रहे हैं अपनी बॉडी से। इन फीसिस एंड अ वाटर वेपर इन द एयर ब्रीथ आउट, देयर आर वी नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर। अब जब पानी की कमी हो रही है बॉडी में, तो जरूरी है उस कमी को पूरा करने के लिए हम लगातार पानी पीते रहें, ताकि पानी की ज्यादा कमी ना हो। लेस intake of water affects the functioning of body. It is so crucial that a loss of amount 1/10 of water from the body could mean death of human. अगर बॉडी में आपकी पानी की ज्यादा कमी हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन से आपकी डेथ भी हो सकती है। अब देखिए एक चार्ट है, नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर इन योर बॉडी कम से कम 65 या 70% तो होना ही चाहिए। जो वाटर लेवल है हमारी बॉडी में 70% होना चाहिए, तब समझिए आपकी बॉडी नॉर्मल है। दिस मच लूज ऑफ वाटर कैन कॉज, अगर ये वाला लेवल कंप्लीट नहीं होगा 70%, आपकी बॉडी में ऑलवेज 60% तक ही वाटर रहेगा, तो आप धीरे धीरे वीक होते जाएंगे और डेथ हो जाएगी। Our body requires about 2 to 3 liters of water every day to flush out urea and keep it under control in our body. 2 से 3 लीटर पानी हमारी बॉडी को रोज ही चाहिए होता है या जरूरी है। अब ये पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें सबके अलग अलग प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, किसको कितनी बॉडी में उनके वाटर की प्रेजेंस है। ठीक है, ये देखिए शार्क 80%, लायन 70, बर्ड 65, ह्यूमन 70, एप्पल 85। जितने भी वाटर कंटेनिंग फ्रूट होंगे ना, ज्यादा पानी वाले, जैसे हम बोल सकते हैं कि वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब क्या है हमारे, ये वो वाले फ्रूट्स हैं जिनमें वाटर लेवल बहुत ज्यादा होता है। हाउ मच वाटर डू मोस्ट थिंग्स कंटेन मोर देन 65? less than 70, more than 85. How much water does a banana contain? ये जैसे आपको यहाँ चार्ट दिया हुआ है, आप लिविंग थिंग्स कितनी है, लिविंग थिंग्स हमारी 65%, लेस देन तो क्या होगा, मोर देन 85%। हाउ मच वाटर डज अ बनाना कंटेन? देखिए बनाना ने यहाँ कितना कंटेन किया है, 75%। हाउ मच वाटर डज अ टोमेटो कंटेन? 95%। What is more in a living thing water? Matter other than water, वाटर ही ज्यादा जरूरी है। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूजफुल मटेरियल एंड वेस्ट प्रोडक्ट इन वर्टिब्रेट्स, द यूजफुल मटेरियल एंड वेस्ट प्रोडक्ट by the body are transported to different part of the body by blood. The process of pumping blood constantly by the heart through a blood vessel to various part of body, इसे हम क्या बोलते हैं, the heart is called circulation। हमारे हार्ट का हमारे सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को अच्छे से सप्लाई करवाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, सर्कुलेशन। द ब्लड फ्लो इन द एंटायर बॉडी थ्रू द सर्कुलेटरी मोशन, और ये मोशन किसके थ्रू हो रहा है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, through the circulatory system varies in different kinds of animal, yet its functions are same in each organism. Some of these are as follows. Transport of oxygen. It transport oxygen from lungs to each cell. अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, हमारे लंग्स के साथ साथ हमारी बॉडी की सारी सेल्स में। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द CO2 formed during respiration of transportation from the site of production to lungs, from the lungs इट इज ब्रीथ आउट, पहले लंग्स में जाएगा और फिर लंग्स से क्या होगा, ब्रीथ आउट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, द फूड एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन ईट फ्रॉम द प्रोवाइडिंग एनर्जी, एब्जॉर्ब करती है और सारी बॉडी सेल्स में एनर्जी प्रोवाइड करती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, अब जो बचा है अनडाइजेस्टेड फूड है वो वेस्ट आउट कैसे होगा, urea produced by different organs due to metabolic activities are carried to kidneys from where they are excrete out, और बॉडी से क्या हो जाती हैं, excrete out हो जाता है। चाहे हम
स्टूल की बात करें चाहे हम यूरिन की बात करें, जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से निकल जाता है। अब ये देखिए अलग अलग वेन्स है, ये वाटर है, ये ब्लू कलर का ये सारा वाटर वाला है। ये क्या है हमारा सर्कुलेटरी मोशन जो पूरी बॉडी में चलता रहता है। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, द फ्लूइड्स हेल्प मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर इन बॉडी, इट ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ हॉटर रीजन टू कोल्डर। अब हीट जो है वो ऑलवेज, इस चीज को नोट कर लीजिए, हीट जो है वो ऑलवेज हॉटर रीजन टू कोल्डर रीजन की ओर ही जाती है। क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमना, खून का जमना कितना जरूरी है। अगर आपका कहीं कट लग गया और लगातार ब्लड फ्लो चलता रहा तो बॉडी में जो है हमारे खून की कमी हो जाएगी, इसीलिए ब्लड की क्लॉटिंग होना बहुत ही जरूरी है। इट प्रिवेंट्स एक्सेस ब्लड लॉस एंड हेल्प इन वुंड हीलिंग बाय फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। और अगर कोई चोट लग गई है तो उसको हील करने का या उसको सही करने का काम भी किससे होता है, ब्लड क्लॉटिंग से। टू स्टडी पल्स रेट, सबको पता है पल्स यहाँ से नापी जाती है। प्लेस द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर इन द राइट हैंड इन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट wrist, जस्ट बिलो द थंब यू फील एनी काइंड ऑफ थंपिंग। इस तरह से आप अपने लेफ्ट हैंड को पकड़ेंगे इन दो फिंगर से और अब यह महसूस करेंगे हल्की सी ऐसे ऐसे जो हमारी वेन्स है उसमें हल्की सी ऐसे डीप टाइप होगी, हमारी पल्स रेट। इट इज ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग का एक तो आपने मेन, दूसरा क्या है, अगर हमारे को चोट लग जाती है तो वो सही होती है। और अब क्या है, प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाती है। जो जंग के बाद अगर हमारे कहीं कट लग गया, अगर हमारे वहां इन्फेक्शन हो गया तो हमारी बॉडी इन्फेक्ट हो सकती है। टू ऑल एनिमल्स हैव द सेम काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम or the system differ according to their body organization or habitat. Let us first understand the circulatory system of human being. Knowledge knows the size of adult human heart is about the size of first fist of person. Heart pumps blood 70 to 72 times per minute. In 24 hours, it pumps 72 liters of blood. 24 घंटे में 72 लीटर ब्लड पंप करने का काम करता है हमारा हार्ट। The circulatory system of transport nutrients, gases, other useful substance and waste material in human body. When you run for some time, अगर आप थोड़े समय के लिए भागे तो आप क्या देखेंगे, वो क्या होगी हमारी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि हम अपनी बॉडी से वर्क ले रहे हैं, भाग रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं अपनी बॉडी से वर्क ले रही हूँ। योर हार्ट बीट फास्टर, अगर आप कोई जल्दी जल्दी काम करेंगे, जल्दी जल्दी बोलेंगे तो हमारा जो दिल है वो हार्ट बीट उसकी फास्ट हो जाएगी, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। This is because at such time the body needs more oxygen to liberate more energy through respiration. To supply more oxygen, the blood flow fast. Knowledge knows the structure of the heart. The human heart is more or less conical in shape. कुछ इस तरह का होता है ना, ये वाली शेप होती है कुछ। Positioned with the chest behind the breastbone. ब्रेस्ट बोन के पीछे या बोल सकते हैं रिब केज के अंदर प्रोटेक्ट होता है हमारा हार्ट। डायफ्राम एंड बिटवीन टू लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में। इट इज द साइज ऑफ पर्सन क्लोज फिस्ट, जितना बड़ा मेरा हाथ है ना उतनी ही मेरे हार्ट का साइज होगा। However, it varies in size with the person's weight, age, sex, state of health. Mammals have double circulatory system. In this kind system, the heart divided into half, each half working as a separate pump. इस तरह से कुछ दो भागों में पटा होता है, एक साइड से प्योर ब्लड आया और प्योर ब्लड को क्लीन करता हुआ बाहर चला गया। वन साइड ऑफ हार्ट पंप्स ब्लड टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। एक का काम क्या होता है, लंग्स को ब्लड प्रोवाइड कराना, और अदर साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू अदर पार्ट, और एक पार्ट क्या काम करता है, दूसरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड प्रोवाइड करता है। Aorta, the largest artery in the body, almost half of diameter in the garden hose. The capillaries are so thick, 10 of them to equal a thickness of human hair. हमारी आर्टरीज होती है ना वो हमारे बालों से ज्यादा बारीक या पतली होती है। आर्टरीज आर्टरीज तो दोनों ही सेम है।
Heavy oxygenated blood from heartbeat, return deoxygenated, usually deep-seated. Superficial position, muscular and thick walled, muscular and thin walled, do not contain walls, contain walls. All arteries conduct oxygenated, deoxygenated, blood flows with jerks in at high pressure, धीरे धीरे blood veins flow slowly, इसमें जो blood flow होता है वो धीरे धीरे होता है. How does the heart work? Heart किस तरह से काम करता है? The heart function as a double pump. When impure oxygen poor and carbon dioxide rich blood arrive in the heart from vein, it first enter the right atrium. From here, the blood flows through an opening into पहले right side आता है, वहां से clean होता हुआ बाहर जाता है. The impure blood is transported from the right ventricle of lungs by the pulmonary artery. This exchange takes place in the lungs. The blood gives off carbon dioxide and is finished with oxygen. Knowledge those animals have red blood. Mostly सबका जो blood है वो red ही होता है, वो pigment की वजह से. Earthworm, leeches, insect have green blood. Starfish and many other invertebrates. Animals without backbone have clear yellowish blood. कुछ का red होता है, कुछ का क्या है green होता है और कुछ का yellow होता है. The oxygen-rich blood reaches the left atrium through the pulmonary veins. From here, the blood flows through an opening into left ventricle. Internal structure of heart. Heart के अंदर का structure. यहाँ पे main जहाँ से blood enter होता है. Pulmonary wave, right atrium, inferior vena. जो चीजें right है वो left भी है. लेफ्ट आर्टरियम पल्मोनरी एक साइड से एंटर होता है और दूसरी साइड से क्लीन होता हुआ बाहर निकल जाता है. हाफ लंग्स को ब्लड प्रोवाइड करता है और हाफ जो हार्ट का पार्ट है वो सारे बॉडी ऑर्गन्स को. द लेफ्ट वर्टिकल पंप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. Dense network of arteries, the oxygen then used by various organs, the carbon dioxide rich blood return right ventricle of heart, the blood is now pumped back into the lung. मतलब ये जो प्रोसेस है ये बार बार लगातार चलता रहता है. Schematic representation of blood circulation. ये आपका हार्ट है, ये हार्ट की पूरी पिक्चर थी, ये वाला प्रोसेस. यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होना शुरू हुआ, हार्ट के एक साइड गया, यहाँ पे प्योर हुआ, यहाँ से एंटर हुआ और यहाँ से ये वाला लंग्स को प्रोवाइड करेगा और ये बाकी ऑर्गन्स को. ये हमारे सारे जो ये सारे हमारे ऑर्गन्स हो गए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को क्या कर रहे हैं, बहुत करने का काम कर रहे हैं. अब जहाँ पे तो रेड पार्ट है वहां पे ब्लड का फ्लो क्या है, बहुत ज्यादा हाई. जहाँ पे पर्पल है वहां पे ब्लड का फ्लो थोड़ा सा मीडियम. और जहां पे ये ब्लू कलर की वेन्स आ रही है वहां पे का जो प्रेशर है वो थोड़ा लो है. ये सारे कलर ब्लड प्रेशर को डिनोट किए गए हैं कि रेड सबसे हाई, पर्पल यानी मीडियम, तो हमारा है ट्रिपल. द पेस मेकर ऑफ द हार्ट, अ स्मॉल मास ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल इन हार्ट राइट एंट्रियम प्रोड्यूस हार्ट टू बीट. यानी एक तरह से बोल सकता है कृत्रिम हृदय यानी आर्टिफिशियल हार्ट, जिसका काम होता है, ये क्या होता है पेस मेकर, इनका काम होता है हमारे दिल को धड़काना. जो आजकल नॉर्मली लोगों जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीज होती है, जिनका हार्ट हेल्दी नहीं होता उनको ये पेस मेकर ऑपरेट करके लगाए जाते हैं ताकि उनका जो दिल है वो प्रॉपर धड़क सके. दिस इज कॉल्ड द हार्ट नेचुरल पेस मेकर. समटाइम द नेचुरल पेस मेकर मे बी डिफेक्ट कॉजिंग द हार्ट टू बीट स्लोअर फास्टर एंड इरेगुलर. अब पेस मेकर नॉर्मली हमारे हार्ट में होते ही हैं, लेकिन कईयों के जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो आर्टिफिशियल पेस मेकर भी अवेलेबल है. फॉर सच पीपल एन आर्टिफिशियल पेस मेकर, a small battery operated device is implanted under the skin of chest. All arteries carry oxygen-rich blood except the pulmonary artery. All veins carry oxygen-poor blood except the pulmonary veins. Composition of blood. Blood किससे मिलके बना है? The blood of vertebrate is made up of red blood cells यानी RBCs. Red blood cells. White blood cells and blood platelets. इनसे मिलके बनता है RBC.
WBC और हमारी ब्लड प्लेटलेट से मिलकर। द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम ब्लड को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ऑल द substance including waste material are carried by plasma. Red blood cells contains a pigment called hemoglobin. अब हमारे रेड कलर के pigment कारण जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हम कई बार बोलते हैं ना खून की कमी या हीमोग्लोबिन कम हो गया है। जो ब्लड का रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। विच इज रेड इन कलर, दैट इज व्हाई ब्लड इज रेड। क्योंकि रेड कलर का है इसी की वजह से ब्लड रेड होता है। रेड ब्लड यानी हमारी आरबीसी, दे आर इनन्यूक्लिएटेड डिस्क शेप दैट कंटेन्स रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, मिल जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड ऑल बॉडी पार्ट्स, और सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है। The process of hemoglobin makes blood appears as hemoglobin forms oxyhemoglobin when combines with oxygen. जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, मिल जाता है, तो वो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। When this reaches the cell and tissue which require oxygen, oxyhemoglobin converts again in oxygen and hemoglobin. The oxygen is used for oxidation of food, and hemoglobins become free and carry more oxygen. Hemoglobin plus oxygen मिलकर बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। White blood cells यानी WBC। White blood cells WBCs are colorless, इनका कोई कलर नहीं होता है। They do not contain hemoglobin, इनमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता, इसलिए रेड नहीं होते। Compared to red blood cells, there are fewer white cells. White blood cells are much bigger than red blood cells. They defend the body against infectious disease. WBC का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन डिसीज होगी या कोई भी इन्फेक्शन होगा उसको क्लियर करना। ब्लड प्लेटलेट्स, blood platelets are tiny fragment with a blood vessel is damaged, blood flow out from it. The body cannot afford let blood flow out. जब हमें कहीं चोट लग जाए तो हमारी बॉडी बिल्कुल उस पोजीशन में नहीं होती कि वो कट जाए और लगातार हमारा ब्लड फ्लो होता रहे, हमारा खून वेस्ट होता रहे। When blood gets exposed in air, it clots. जब ब्लड हवा के संपर्क में आता है, कहीं हमें कट लग जाता है, जैसे ही वो ऑक्सीजन के हवा के संपर्क में आता है, वहाँ क्या होती है? क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है या खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। द प्लेटलेट प्रेजेंट इन द ब्लड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ये जो खून का काम करती है, जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है और ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है और हमारा खून बहना रुक जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ये ब्लड वेसल है, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल, बेसोफिल, प्लेटलेट, माइक्रोफेज, लिम्फोसाइट और रेड ब्लड सेल, और ये प्लाज्मा लिक्विड जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं, ये सब मिलके हमारा ब्लड बनाते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, a badly injured person may lose a lot of blood. A blood loss of 40% or more may cause death. अगर हमारी बॉडी से 40% ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, या बोल सकते हैं एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट में उसका ज्यादा ब्लड लॉस हो गया, ज्यादा खून बहने लगा, अगर 40% से ज्यादा खून उसका बह गया तो उसकी जान भी जा सकती है। द डॉक्टर मस्ट गिव द पेशेंट ब्लड डोनेट बाय अनदर, फिर उसको दूसरे पर्सन का ब्लड चढ़ाया जाता है, लेकिन ब्लड भी उसी पर्सन का चढ़ाया जाएगा जिनका ब्लड ग्रुप मैच करेगा। और ब्लड ग्रुप के बारे में डिटेल में आप आगे जाके पढ़ेंगे। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या किया? उसका जो ब्लड था वो लॉस हो गया, उसकी बिल्कुल जान खतरे में आ गई, तो दूसरे पर्सन का आपने ब्लड उसको डोनेट कर दिया या उसको चढ़ा दिया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। डोनेटेड ब्लड इज स्टोर्ड इन ब्लड बैंक। आप ब्लड बैंक जो है, जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं वो जाके ब्लड बैंक को डोनेट करते हैं, और वहां पे उन्हें अच्छे से बहुत केयरफुली ब्लड को अच्छे से प्यूरिफाई किया हुआ होता है, ब्लड से निकाला उन्हें अच्छे से कंटेनर में सील करके रखा जाता है ताकि उसे कोई भी इंफेक्शियस डिसीज हार्म ना कर सके, और केयरफुली टेस्ट करके फिर दूसरे पर्सन को जिसको उसकी नीड होती है उसे वो ब्लड डोनेट कर दिया जाता है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था ब्लड ग्रुप्स के बारे में, आप डिटेल में जानना जरूरी है कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ए, बी,
ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप हैं। डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट, सबका अलग होता है, सबका सेम नहीं होता। दिस इज बिकॉज ऑफ ब्लड अनमैच्ड ग्रुप दैट मेक्स द रेड ब्लड सेल स्टिक टुगेदर एंड कैन लीड टू डेथ। अगर किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा और गलती से उसको किसी ऐसे पर्सन का ब्लड चढ़ा दिया गया जो उसके ग्रुप से मैच नहीं करता, तो भी उस पर्सन की डेथ हो सकती है। किसी के लिए जरूरी है, जरूरत पड़ने पर जब भी आपको ब्लड की जरूरत पड़े तो ब्लड ग्रुप जरूर मैच करवाए, ताकि वो आपकी बॉडी को कोई हार्म ना करे। Blood performs three different kinds of functions: transportation, protection, and regulation. Blood carries oxygen from the lungs to tissues and carbon dioxide from the tissue back the lungs. It carries dissolved food substance from small intestine. It carries waste of metabolism kidney with excrete through the urine. It carries chemical messenger called hormones. It carries antibodies. It carries vitamin enzymes. By clotting, it prevents loss of blood after injury. White blood cells fast fight against disease-causing germs. Blood controls amount of water in body. It also helps to regulate amount of chemical substance. It helps to keep body temperature constant. Blood का एक काम क्या होता है, हमारे body temperature को normal रखना या constant रखना. Lymphatic system of human body. The liquid part of blood is known as plasma. सबको पता है ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा बोलते हैं. As the blood flows through the capillaries, some plasma oozes out the walls. Most of this fluid enters the lymph vessels situated in body. The fluid collected by lymph vessels is straight back in the veins before the lymph is returned to circulatory system. It filtered through lymph nodes. Lymph nodes contain special tubes of cells. These cells protected human body from disease. Lymph node का काम होता है ह्यूमन बॉडी को आप बाहर की डिसीज से सुरक्षित रखना. ये है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम. जितना भी ये ग्रीन है, ये है क्रिस्टीनिया साइली, राइट लिम्फेटिक डक्ट, थाइमस, सर्विकल, यहाँ दर्द होता है सर्वाइकल जहाँ पे पेन होता है, पैलेंटीन, टॉन्सिल, टॉन्सिल ये वाला एरिया हमारा, जहाँ कई बार वो ये फूल जाते हैं और हमारे गले में बहुत पेन होता है. एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, इंग्यूनल लिम्फ ऑफ नोड्स, ये सारे क्या है, जो आपको गोले गोले दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे हमारे लिम्फ का काम होता है जाना. Anybody who healthy weight 50 kg and between the age of 18 to 65 can donate blood. अगर किसी इंसान का वजन 50 किलो है और वो 18 से 65 की उम्र है, तो वो इजीली ब्लड डोनेट कर सकता है. 5 लीटर ऑफ ब्लड एंड एडल्ट बॉडी, अ डोनर में भी हाफ लीटर ऑफ ब्लड, एक बारी में आप हाफ लीटर ब्लड अपनी बॉडी से डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्सन के अंदर क्या होता है, कम से कम 5 लीटर ब्लड होता है, तो उसमें आप हाफ लीटर ब्लड डोनेट बहुत आसानी से कर सकते हैं. एक्सक्रीशन इन एनिमल, major waste product in animal, ammonia in hydra, amoeba, paramecium. Ammonia is liberated through general surface into water by diffusion. In sponges, waste product released through openings in the body. Insect, Malpighian tubes, excretory organ, leeches and earthworm, इनके nymphoiders होता है. Sweat component in water, urea, salt and eliminated by sweat glands present our skin. Beside excretion, sweating also helps in regulating our body temperature. Excretion मतलब वेस्ट को बाहर निकालना. एक्सक्रीशन इन एनिमल, जितनी भी वेस्ट चीजें हैं वो आप अपने बॉडी पार्ट से किसी ना किसी तरह से बाहर निकाल रहे हैं. जैसे हम बोले हमें पसीना आता है, तो वो भी एक तरह का हमारी बॉडी का वेस्ट बाहर निकल रहा है. ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन किस तरह से एक्सक्रीट करता है. यहाँ तो आपने सबके अलग अलग ऑर्गन पढ़े, स्पॉन्जेस का पढ़ा, हाइड्रा, अमोनिया का पढ़ा, कॉकरोचेस का पढ़ा, आर्थवर्म का पढ़ा. सब स्ट्रक्चर अलग अलग है एक्सक्रीशन की. अब आते हैं ह्यूमन की. ह्यूमन बीइंग हैज 2 किडनी. किडनी क्या होती है? राइट एंड लेफ्ट, दे आर लोकेटेड एब्डोमिनल कैविटी. ईच किडनी कंटेन्स मैनी टाइनी ट्यूब्स which work like filter. किडनी का काम होता है फिल्टर करना, एक्सक्रीट करना यूरिया को और कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो. ये हमारा यूरेथ्रा हो गया.
यानी लास्ट में जहाँ से आप यूरिन पास करेंगे, ये हमारा यूरिन ब्लैडर हो गया जिसके अंदर हमारी सारी यूरिन आके भर जाती है। ये आइलेक वेन, ये यूरेटर, यहाँ से यूरिन इसमें आके कलेक्ट होती है। आइलेक आर्टरी, रीनल आर्टरी, ये भी रीनल आर्टरी, लेफ्ट किडनी, राइट किडनी, एड्रीनल ग्लैंड, एरोटा, इंफीरियर। यहाँ क्या है, हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है लिक्विड फॉर्म में हमारी किडनी में जाके जमा हो जाएगा और फिल्टर होके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। Blood is bound to kidney through arteries. As the blood flow through the capillaries in tiny tubulars, it is filtered. In and of filtered process is urine. A major component is urine is water. The urine contain waste like urea, ammonia. अब हमारी यूरिन में भी कितने तरह के वेस्ट होते हैं? यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, जो हमारी यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। The urine flow through two long tubes called ureter. ये वाली ट्यूब्स मैंने बताया ना, इन्हें यूरेटर बोलते हैं। इन यूरिनरी ब्लैडर, इन ट्यूब से यहाँ आके इस ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। यूरिनरी ब्लैडर इज स्टोरेज सैक ऑफ यूरिन। द यूरिन अल्टीमेटली इज ड्रेन आउट ऑफ बॉडी। अब आता है हमारा स्वेटिंग। स्वेटिंग इज वन ऑफ द वे बाय विच वी रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। Humanly on the evaporation of sweating to protect the body against hot environment, sweating increase with warmer. पसीना आना वैसे वैसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर स्ट्रेस और नर्वसनेस, टेम्परेचर बढ़ेगा अगर आप स्ट्रेस है, परेशान है, घबरा रहे हैं किसी चीज को लेकर, तो भी आपको पसीना आने लगेगा। Sweat helps to keep skin moist. Sweat glands under the skin produce sweat. Knowledge dose, the waste product produced in body by an organism may be harmful or toxic in nature. जितनी भी चीजें बॉडी हमारी एक्सक्रीट करती है वो हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। If they allowed accumulation in body, they can cause serious problem. Therefore, it become essential expel these waste product from the body. क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है इसलिए इनका हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है। डायलिसिस, अब आपने देखा होगा कई लोगों की किडनी फेलियर हो जाता है, उनकी डायलिसिस होना स्टार्ट हो जाती है। द किडनी फिल्टर एंड प्यूरिफाई ब्लड, throwing out impurities through urine. In the kidney becomes disease and keys functioning. क्या होता है, किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है। Kidney becomes disease and keys functioning. The blood gets poisonous and patient dies. तो उस पेशेंट का जो ब्लड है, किडनी का काम होता है साफ करना। अब जब बॉडी में सफाई नहीं होगी, गंदगी भरती जाएगी, तो आप डेड हो सकते हैं। इन सच सिचुएशन इट इज द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। उस समय का प्रोसेस होता है। द वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीट फ्लूइड आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड। डायलिसिस यूजिंग अ फिल्टर प्रोसेस ऑफ ब्लड बाय मशीन। अब एक तो हमारी किडनी है जिसका काम है नॉर्मल वर्किंग करना, हमारे शरीर की सफाई करना, सारी चीज़ों को, वेस्ट को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। अब जब हमारी किडनी डैमेज हो गई या उसे कोई डिसीज हो गई, वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे, फिर हम क्या करते हैं, मशीन के द्वारा अपने ब्लड की सफाई करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस। डायलिसिस यूजिंग नेचुरल फिल्टर मेम्ब्रेन ऑफ बॉडी कॉल्ड पेरिटोनियम, दिस इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। ये हमारी आर्टरी है, ये हमारी वेन है। अब यहाँ क्या होगा, डायलिसिस कैसे होगी, देखिए ब्लड निकला, ब्लड कैरिंग वेस्ट सॉल्यूशन पास। अब ये ब्लड जो निकला ये आपका इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। फिर ये डायलिसिस फ्लूइड, डायलिसिस किया एक फ्लूइड के साथ, मिक्स के साथ मिला के, इनसेंसिटिवली पर मेम्ब्रेन सेपरेटिंग ब्लड फ्रॉम डायलिसिस फ्लूइड। अब यहाँ पे ये जो मशीन है ये क्या करेगी, ब्लड को अलग करेगी और इम्प्योरिटीज को अलग निकालेगी। उसके बाद डायलिसिस फ्लूइड इसमें मिलाया जाएगा और जो क्लीन ब्लड है वो वापस से हमारी वेन्स में मशीन के थ्रू चला जाएगा। अब ये पिट्रूटियम डायलिसिस ये किस तरह से होता है, देखिए डायलिसिस बैग, ये आपने केमिकल डाला, ये अंदर जाके सब क्लीन करेगा और वेस्ट आउट इस ड्रेन बैग में आ जाएगा। जैसे ये डायलिसिस बैग है, ये हमारे सारे यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट भरे हुए हैं, इससे आपने केमिकल अंदर बॉडी में डाला और वो सारा हमारा ब्लड क्लीन हो गया और वेस्ट प्रोडक्ट हमारा इस ड्रेनेज बैग में आ गया। ये हो गया आर्टिफिशियल काम जो मशीन के द्वारा होता है, नहीं तो यही काम हमारी किडनी करती है अगर वो हेल्दी हो।
Kidney are made up of filters that remove waste from blood body. किडनीज क्या है? एक तरह का फिल्टर है जिसका काम होता है ब्लड से इम्प्योरिटीज को रिमूव करना. नाउ recapitulate an encyclopedia, read yourself. Now checkpoint time. In plants, water is transported through xylem. Water absorbed through roots can be increased by keeping the plants under the fan. The instrument used to hear the heartbeat is stethograph. Each kidney has million tiny filters called nephrons. The body of every organism is made up of cells. Now question B, filling in the blanks. RBCs stand for red blood cells. The mineral molecule can enter into the root hair by osmosis. Dash blood vessels generally transport blood from the heart to the rest of body. Red blood vessel. Hemoglobin forms oxyhemoglobin when combines with oxygen. An adult heartbeat varies from 72 beats per minute. Tick right the correct and cross out the incorrect statement. The transport system plants called vascular system. 2. Transpiration is evaporation of water of flower part. 2. The WBCs are soldier of body. 2. Blood is a connective tissue. 2. Dialysis clean the body artificially. Is also true. Now question D, match the following. Arteries, blood vessel, capillaries, arteries, blood vessel, capillaries, thin vessel, leaves, food factory, blood platelets, tiny cells, fragment, plasma, liquid part of blood. Now read this chapter and rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.